કેટલું સરસ નૃત્ય, કેટલો ઉત્સાહ! આ સૌ બાળ કલાકારોએ આપણામાં દેશપ્રેમને જાગૃત કરી આપ્યો. તો આ સૌ બાળ કલાકારોને આપણે સૌ ફરી એકવાર તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવી લઈએ. ભારતનું ભવિષ્ય બીજ એવા બાળકોમાં સંસ્કાર સિંચન, મૂલ્યનિષ્ઠ શિક્ષણ તથા સંસ્કૃતિ જતનનું અધકેરું કાર્ય કરતી શિક્ષણ સાગર સમી શારદા મંદિરના બાળકો ક્યારનાય થનગનાટ કરી રહ્યા છે. થનગનાટ? શાનો થનગનાટ કરે છે? માતા, માતૃભાષા અને માતૃભૂમિને હૃદયમાં રાખવાનું જ્યાં હંમેશા શીખવવામાં આવે છે એવા બાળકો માતૃવંદના કરવા થનગની રહ્યા છે. આપણા દેશે આ વર્ષે આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ ઉજવ્યો, ત્યારે આપણી શાળાના વિદ્યાર્થીઓએ તેમાં અનેરા ઉત્સાહ સાથે ભાગ લીધો. વિવિધ કાર્યક્રમો પણ થયા, પરંતુ મને તો આઝાદી પહેલાનું એક ગુલામ ભારત દેખાય છે. આઝાદી પહેલાનું ગુલામ ભારત? હા, ગુલામીનો એક કાળો ઇતિહાસ, અહિંસક લડત પર ક્રૂર લાઠીચાર્જ, અન્યાયી અને બેરહેમ કાયદાઓ, રાજાઓને હરાવવાનું છળકપટ, દેશના એ અગ્રણી નેતાઓનો વારંવાર જેલવાસ અને જલિયાવાલા બાગનો એક ક્રૂર હત્યાકાંડ. ઓહ, હૃદય કંપાવી મૂકે એવી અજાણી કેટલી ક્રૂર ઘટનાઓથી હું ગુલામીના એ દિવસોનો અનુભવ કરી રહ્યો છું. અને આપણે તો આ ઘટનાઓને સંવેદના વગર ફક્ત સાંભળીએ છીએ. તું આમ ભાવ વિભોર અને દુખી ન થા. જે કહેવું હોય તે કહી દે. હૃદય કંપાવી મૂકે અને રોમે રોમમાં ગુસ્સો ભરી દે તેવી કેટલી ક્રૂર ઘટનાઓ આ દેશવાસીઓ સાથે ઘટી છે. શહીદોના રક્તથી રક્ત રંજીત થયેલ ભારત ભૂમિને જળહળતી રાખવા માટે ભારતને તોડવાની તાકાતને નેસ્ત નાબૂદ કરવાની છે. આવી જ દેશદાસથી છલકાતી રાષ્ટ્રપ્રેમની ભાવનાને વ્યક્ત કરવા ધોરણ 1 થી 12 ના બાળ કલાકારો ક્યારનાય સ્ટેજ પાછળ થનગની રહ્યા છે. તો ચાલો નિહાળીએ એક ભવ્ય લાઇટ, સાઉન્ડ અને 650 બાળ કલાકારોના લાઈવ પરફોર્મન્સનો ત્રિવેણી સંગમ, એટલે કે આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ. પ્રેરણા અને આશીર્વાદ પરમ પૂજ્ય સાહેબ દાદા, પરિકલ્પના સુનિલભાઈ પંડ્યા, લેખન વેદકુમારી, પ્રકાશ દિગ્દર્શન અને પ્રકાશ પરિકલ્પના પ્રદીપ કુમાર, નૃત્ય સંયોજન શ્રેયા મેડમ અને રાકેશ પ્રજાપતિ, સહાયક વિજય ડાભી, રંગભૂષા ભાવિન જલારામ જયસ્વાલા વિદ્યાનગર, ગ્રાફિક્સ તુષાર શાહ, સ્ટેલર કન્સેપ્ટ વડોદરા, રંગભૂષા દિનેશ લાકડાવાલા, લાઇટિંગ કેતુલ ડ્રેસવાળા વડોદરા, સાઉન્ડ માસ્ટર સાઉન્ડ આણંદ. તો રજૂ કરીએ છીએ આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ. Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.
a moment comes which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people and to the still larger cause of humanity. मैं भारत तुम्हें अपनी आजादी की कहानी, जंजीरों से जकड़े दिनों और गुप्त काली अंधेरी रातों की कहानी सुनाता हूं। कहानी उन शहीदों की जिनकी अनगिनत पीठ और कंधों पर चढ़कर आजादी का सूरज मेरी सरजमी के आसमान में उदित हुआ। जंग लड़े वो वीरों की तरह जब खून खौलकर फौलाद हुआ, मरते दम तक डटे रहे वो, तब जाकर मैं आजाद हुआ। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मुझे आज भी याद है
मानगढ़ का नरसंहार 17 नवंबर 1913। गुजरात के महिसागर जिला तथा राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की सीमा पर स्थित मानगढ़ की पहाड़ी पर 1500 से ज्यादा भीलों को अंग्रेजों ने मौत के घाट उतार दिया था। आज हम सब जिस आजादी का आनंद उठा रहे हैं, उसकी एक झलक पाने के लिए न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। उनमें से कई स्वतंत्रता सेनानियों से आप परिचित हैं, परंतु मानगढ़ हत्याकांड से आप अपरिचित थे। वैसे ही कई सेनानियों के नाम इतिहास के पन्नों से गायब हो गए हैं। चलो आओ, आज मैं तुम्हें अब मेरे उन अपरिचित शहीदों से मिलवाता हूं, जिनमें से एक है तिलका मांझी। वो रहा, पकड़ो से, फायर, छोड़ द बैग, पकड़ो से, रन, रन। अरे ये तिलका कहाँ चला गया? तुमने देखा उसे? नहीं, उसने हमें कुछ नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है। हमने अंग्रेजों को रामगढ़ कैंप कब्जा करने से रोका था, इसलिए कहीं उन्होंने रोका नहीं, खदेड़ा था। हाँ वही, कहीं उसका बदला लेने के लिए अंग्रेजों ने तिलका को कहीं। वो देखो, तिलका आ गया। अरे दोस्तों, आज जश्न मनाओ, आज अंग्रेज सुपरिटेंडेंट क्लीवलैंड खत्म। क्या बात है तिलका, वाह 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 तिलका वाह। सबसे पहले सबसे बढ़ के दिल में मेरे है ये मेरा वतन। आसमां भी हार जाए कर ले कोई जतन। सबसे बढ़ के दिल में मेरे है ये मेरा वतन। आसमां भी हार जाए कर ले कोई जतन। मैनू लगया, ओ मैनू लगया, ओ मैनू लगया, लगया लगी लगया लगया लगी लगया कसम दी रंग ऐसा। मैनू लगया लगया लगी लगया लगया लगी लगया कसम दी रंग ऐसा। मैनू लगया लगया, मैनू लगया लगया, मैनू लगया कसम दी रंग ऐसा। मैनू लगया लगया लगी लगया लगया लगी लगया कसम दी रंग। सिद्ध पे जोड़ जाएंगे, जग से भी लड़ जाएंगे, आबरू इसकी रखने को तो मैं वारी जावा ये जीवन। कैसा मैनू लगया लगया लगी लगया लगया लगी लगया कसम दी रंग ऐसा। मैनू लगया लगया लगी लगया लगया लगी लगया कसम दी रंग कैसा। मैनू लगया लगया, मैनू लगया लगया। अंग्रेजों की फौज आ गई, भागो यहाँ से। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो चलो। तिलका भागो भागो, अपनी जान बचाओ तिलका, भागो यहाँ से। भागो भागो भागो, भाग तिलका भाग। Say, Tilka is running, fire! Oh, Tilka run for it, पर वो बचेगा नहीं। Let's go, come on, पकड़ो उसे। लोगों ने मेरे लोगों का खून बहाया है, अब आपके खून की मैं तिलका मुरमुरे मांझी नदियां बहाऊंगा। What's your name? तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, तिलका मुरमुरे। इसे घोड़े के पीछे बांध दो और भागलपुर के चौराहे पर जो ट्री है उस पर उसे लटका कर फांसी दे दो। भारत माता की जय।
अपना लोहा मान दुनिया ये बनाया है मन, सारा दम खम डाल के हम पूरा कर दे वचन। अपना लोहा मान दुनिया ये बनाया है मन, सारा दम खम डाल के हम पूरा कर दे वचन। डर से ऊपर उठ गए सर, हौसले हैं बुलंद, सिरा दे तो हिला दे, हर किसी में कहाँ है इतना दम। मैनू लग गया, ओ मैनू लग गया, ओ मैनू लग गया, लग गया, लग गया। मुझे आजाद करने के लिए अंग्रेजों और स्थानीय महाजनों सामंतों को 1781-1784 में पहली चुनौती देने वाले पहाड़िया समुदाय के वीर आदिवासी लड़के थे। इन आदिवासी लड़कों में सबसे लोकप्रिय जबरा, जोराहा, पहाड़िया उर्फ तिलका माझी था। फिर सन 1824 में कितूर राज्य की रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों को चुनौती दी। Our next target is केटोर राज्य। केटोर के पास बहुत खजाना है और केटोर की रानी संभाल रही है। हम केटोर पर आक्रमण करके उसे अपने कब्जा में करेंगे। रानी जी, अंग्रेजी सेना कितूर पर आक्रमण करने आ रही है। उन्होंने संदेशा भेजा है कि आप आत्मसमर्पण कर ले, नहीं तो वे। नहीं, सभी गांव वालों को इकट्ठा करो। जो आज्ञा। गांव वालों सुनो, जब तक मेरी नसों में रक्त की एक भी बूंद है, तब तक कितूर को कोई नहीं ले सकेगा। हम सब मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला करेंगे। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। रानी चेन्नम्मा की जय, रानी चेन्नम्मा की जय। शत्रु से कह दो जरा, सीमा में रहना सीख ले। ये मेरा भारत अमर है, सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए।
and keep her in jail. युद्ध ये सम्मान का है, मान रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। रानी चेन्नम्माई को बंदी बनाकर कारावास दे दिया गया और 21 फरवरी 1829 को रानी चेन्नम्माई वीर गति को प्राप्त हुई। और फिर आए मंगल पांडे। नहीं मंगल, हम इसका सामना नहीं कर सकते। नहीं मंगल नहीं, तेरी जल्दबाजी में हम सब मारे जाएंगे। हम अभी तैयार नहीं है मंगल, नहीं हम अभी तैयार नहीं है मंगल। अभी नहीं तो कभी नहीं। क्या हो गया है तुम लोगों को? नहीं नहीं मंगल, हम इनका सामना नहीं कर सकते। दिखाई नहीं देता? जिस पल का हमें इंतजार था वो पल आ गया है। वक्त आ गया है मारने और मरने का। नहीं मंगल, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। उठाओ अपनी बंदूकें और लड़ो अपनी आजादी के लिए, एक बार अपने आप के लिए। जय हिंद। हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे मंगल। मैं इस देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दूंगा। जाओ, चले जाओ बुज़दिलों, मैं अकेले ही इस देश की आजादी के लिए लड़ूंगा। भारत माता की जय! भारत माता की जय! देसी धज से चला है ये बागी, जो भी देखे वो शीश निभाए। अपने होठों पे है आज भी वो नारा आजादी का ही सजाए। अपनी आंखों में है आज भी वो अपनी धरती के सपने बसाए। फांसी तो लगती है सिर्फ तन को, कौन सपनों को फांसी लगाए। फांसी तो लगती है सिर्फ तन को, कौन सपनों को फांसी लगाए। जो तो फिर भी नहीं बुझ सकेगी, दीप चाहे न कोई बुझाए। अल्लाह बोल। सन 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी के साथ झलकारी बाई भी लड़ी थी। झलकारी बाई समाज से जुड़ी हुई थी। वे रानी लक्ष्मीबाई की दासी थीं। भाग भाग रे भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई है। भाल तिलक और हाथ खड़क, दुर्गा है काली माई है। भाग रे भाग फिरंगी, भाग भाग रे भाग। अश्व चढ़ी प्रचंड विकट, ये मनु है लक्ष्मी बाई है। शोले बरसेंगे अब तुझ पर, तेरी शामत आई है। शकल नयन की धार तो देखो, गज पर भारी वार तो देखो, तेरे शीश को लेने आई झांसी की रानी आई। झांसी की रानी आई। भाग भाग रे भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई है। भाल तिलक और हाथ खड़क, दुर्गा है काली माई है। भाग रे भाग फिरंगी, भाग भाग रे भाग।
उठे राजवंशों ने भ्रकटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, डूबी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर तिरंगी को करने के सपने मन में ठानी थी। जब उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, सुनने ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। मनु, तुम राजकुमार को लेकर महल से भागने की कोशिश करो। किसी भी कीमत पर राजकुमार अंग्रेजों के हाथ नहीं लगने चाहिए। भागो यहाँ से। हाँ ठीक है मनु, तुम निकलो यहाँ से, मैं देखती हूँ इन्हें। तुम मोर्चा संभालो, मैं यहाँ से निकलती हूँ। झलकारी, इतने सालों के बाद भगवान ने हमारी प्रार्थना सुनी है। मां बनने जा रही हो। मैं सोचता हूं तुम जो करने जा रही हो वो सही नहीं है। अभी भी समय है, हम यहां से निकल सकते हैं। आजाद भारत ना सही, हम तीनों अपना पेट कहीं पाल लेंगे। निकलो यहां से, मैं कहता हूं निकलो यहां से। नहीं, जब तक हमारी मातृभूमि बेड़ियों में है, तब तक कोई माँ अपनी औलाद को गुलामी का जीवन देना नहीं चाहेगी। मैं और मेरी होने वाली औलाद बहुत खुश नसीब वाले हैं कि हमें अपनी इस धरती के लिए अपनी जान देने का मौका मिला है। Here is the queen. We meet again, Rani, Rani of Jhansi. ये बुंदेल हमारा है, छोड़ दो इसे, चले जाओ यहाँ से। How? This is not the queen. ये रानी नहीं है। रानी किधर है? बोलो। मैं पूछता हूँ, रानी किधर है? तेरी तड़प में, तड़प, तेरी तड़प में मूर्ख। बोलो, नहीं तो मार दिया जाएगा। भारत माता की जय। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मुझे पिंजरे से आजाद करने के लिए झलकारी बाई ने आत्मसमर्पण कर अंग्रेजों को ललकारा, उनकी फौज को मौत के घाट उतार दिया। स्त्रियों के साथ साथ कई बच्चों ने भी मुझे आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उनमें से एक सबसे कम उम्र का स्वतंत्रता सेनानी बाजी राउत था। 12 वर्ष की उम्र से ही बाजी राउत मेरे बारे में सोचता था। वो ठिकाना राज्य में एक छोटा सा गांव आता है, नीलकंठपुर। वो वहां का रहने वाला था। बचपन से ही वो अंग्रेजों को मेरी जमीन से खदेड़ने के मौके ढूंढता रहता था। तभी उसे
प्रजामंडल नामक एक मंडल मिला जो अंग्रेजों का डटकर सामना कर रहा था, जिसके मुखिया भुवनानंद नाथ थे। प्रजामंडल ने कुछ समय बाद एक चिल्ड्रंस विंग की स्थापना की थी, जिसे वानर सेना नाम दिया गया था, जो अंग्रेजों की जासूसी करता था। बाजी राउत अपने दो मित्र लक्ष्मण मल्लिक और प्रभु साव के साथ वानर सेना में जुड़ गए। बाजी राउत ब्राह्मणी नदी पर नाव चलाते थे और अंग्रेजों को नदी पार करनी हो तो नाव से जाना पड़ता था, क्योंकि वहां पर कोई पुल नहीं था। दिन में लाठी सीखने के बाद अंग्रेजों की जासूसी करते थे। अंग्रेजों के लिए वैष्णव चरण पटनायक मोस्ट वांटेड थे और वो नीलकंठ नगर आकर छिप गए थे। एक दिन की बात है, लगता है अंग्रेज आ रहे हैं। मैं शंख बजाकर प्रजामंडल को सचेत कर देता हूँ। ओ प्यारे बच्चे, हमें थोड़ा नाव से नदी पार करा दे, बदले में हम तुम्हें चॉकलेट देगा। ओह नो! तुम्हारी ये हिम्मत! चाहे आज मेरे प्राण ही क्यों न चले जाए, मैं तुम सबको उस पार मेरे गांव में घुसने नहीं दूंगा। मारो इसे! नहीं जाने दूंगा। एक कदम आगे मत बढ़ाना। जिंदाबाद छोड़ो! भारत माता की जय! वंदे मातरम! फायर! सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आंखों से छलकना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। एक तरफ वीरांगनाएं और बच्चे मेरी आजादी के लिए लड़ रहे थे, तो दूसरी तरफ मैं समाज की कुरीतियों से दबा हुआ था, जैसे सती प्रथा, पुत्री हत्या इत्यादि। इन कुरीतियों से मुझे बचाने के लिए परम पूज्य सहजानंद स्वामी महाराज ने अवतार धारण किया। महाराज श्री ने काठी, कोणी, कणबी जैसी जातियों को इकट्ठा कर एक नए संप्रदाय की स्थापना की, जिसे स्वामीनारायण संप्रदाय कहा जाता है। આવ્યા માણકીના અસવાર, શ્રીજી સજી શણગાર શોભે, ભક્તોની સાથ સૌના જીવન આધાર. આવ્યા માણકીના અસવાર, શ્રીજી સજી શણગાર શોભે, ભક્તોની સાથ સૌના જીવન આધાર. શોભે ભક્તોની સાથ સૌના જીવન આધાર.
मुखमा मल के सुप्रीत छल 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 के सुप्रीत हेली हेत निवर से जाने वर्षा मल्हार मल के सुप्रीत चल 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 के सुप्रीत हेली हेत निवर से जाने वर्षा मल्हार। पगला गंगा ना नीर दलड़ू यमुना नु तीर तारी दस्ती ना दाने लागे दिन दिन त्योहार गंगा ना नीर दलड़ू यमुना नु तीर तारी दस्ती ना दाने लागे दिन दिन त्योहार। आया माणकी ना असवार श्री जी सजी शरणगार शोभे भक्तों की साथ सौना जीवन आधार शोभे भक्तों नि साथ सौना जीवन आधार। लाओ ये बच्ची मुझे दे दो। नहीं नहीं नहीं, मेरी बच्ची नहीं दूंगी, मेरी बच्ची मैं नहीं दूंगी। होरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे। नहीं दूंगी मेरी बच्ची ठीक को, नहीं है। नहीं लाओ, दूंगी। छोड़ो इसे। लाओ मेरे पास। नहीं दूंगी। अरे लाओ ना। नहीं दूंगी मेरी बच्ची, मैं नहीं दूंगी। अरे ये जिंदा रही तो खुद तो दुखी होगी, हमें भी दुखी करेगी। छोड़ो इसे, छोड़ो। और लहू ये क्या कर रहे हो वत्स? ये तो तुम दुगना पाप कर रहे हो। एक तो स्त्री हत्या और दूसरी बाल हत्या। पर क्या करे महाराज, बाद में योग्य वर नहीं मिलते और बेटियां दुखी होती है। यदि यही बात है तो हम युवकों को आदर्श संस्कार की शिक्षा देंगे। सजानंद स्वामी महाराज की जय। सजानंद स्वामी महाराज की जय। सजानंद स्वामी महाराज की जय। तो है मेरी बाह ग्रह की लाज, तो है मेरी बाह ग्रह की लाज। मेरे महाराज, 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 मेरे महाराज। तो है मेरी बाह ग्रह की लाज, तो है मेरी बाह ग्रह की लाज। हम है पतित तुम पतित के पावन, हम है पतित तुम पतित के पावन। श्री हरि गरीब निवाज रे हो, श्री हरि गरीब निवाज रे हो। मेरे महाराज, मेरे महाराज, मेरे महाराज, मेरे महाराज, मेरे महाराज, मेरे महाराज।
फिर परम पूज्य सहजानंद स्वामी महाराज ने मेरी भूमि पर आदर्श संस्कारों का युवकों में सिंचन किया। उन्होंने धर्म सभाओं की स्थापना की तथा मंदिरों में नई व्यवस्थाओं को जन्म दिया। महाराज श्री के पश्चात मुझे आजाद करने के लिए कई आध्यात्मिक नेता उभर कर आए, जिन्होंने ब्रिटिश अधीनता के लिए निरंतर प्रतिरोध की पेशकश करने के लिए लोगों को प्रेरित किया, जैसे दयानंद सरस्वती। फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो। इंसान को दिया गया सबसे बड़ा यंत्र आवाज है। अज्ञानी होना गलत नहीं है, अज्ञानी बने रहना गलत है। उठो, जागो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। अब हमारे सारे कार्यों का लक्ष्य मातृभूमि की सेवा ही होनी चाहिए। आपका अध्ययन, मनन, शरीर, मन और आत्मा का संस्कार सभी कुछ मातृभूमि के लिए होना चाहिए। आप काम करो जिससे मातृभूमि समुद्र हो। तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले। हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे। ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे। उफक पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो, उफक पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो। तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, हिंदुस्तान चले। हम सभी को एक सूत्र में बंधना है। गणपति उत्सव मनाएंगे और अपने सोए हुए वीरत्व को जगाने के लिए शिवाजी उत्सव शुरू करेंगे। उत्सव प्रिय होना मानव स्वभाव है। हमारे त्योहार होने चाहिए। जब लोहा गर्म हो तभी उस पर चोट कीजिए। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। जगदम्बा 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 जगदम्बा। छत्रपती खड्गधर कवडी माळ चापधर वज्र तेज रुद्र स्वर जगदम्बा 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 जगदम्बा। मृत्युंजय छत्रधर शौर्य यज्ञ शुभंकर युग कीर्ती धुरंधर जगदम्बा 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 जगदम्बा। तेजपुंज मुकुटमणि सह्यागिरि कंठमणि सिद्धहस्त मेरुमणि जगदम्बा 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 जगदम्बा। हिंदू नृप विश्वंभर तांडव कर शिव शंकर पराक्रमी पुरंदर जगदम्बा 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 जगदम्बा। अग्निशिखा दिव्य प्रभा जिजामाता कुलदीपा शास्तुतो शिवशेषा जगदम्बा 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 जगदम्बा। धर्मवंत भव्य
सत्यव्रता शिव शक्ति महातुळजा राम कृष्ण अवतारा जगदंब 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 रोलेट एक्ट इंसानियत दे नाल एक कलंक है। कोई भी इंसान इनू बर्दाश्त फौज भी है फौज लोड हमें बापू का कहा करके दिखाना है। सामूहिक अहिंसक असहकार की शक्ति को हमें साबित करना है। अगर आप लोग सब एक मत होकर ये तय कर लें कि हम अपनी मर्जी से ये लगान नहीं भरेंगे, तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि किसी भी सरकार के पास ऐसा कोई साधन नहीं है जो आपका इरादा बदल। सूरा जाग जो रे कायर भाग जो रे सूरा जाग जो रे कायर भाग जो रे मातू मेलो हाचवा हाची देखने रे मातू मेलो हाचवा हाची देखने हाची देखने हो साइमन कमीशन भारत माता की साइमन कमीशन हिंदुस्तानी है हम, हिंदुस्तान है हमारा। मुड़ जाओ साइमन, जहां देश है तुम्हारा। वंदे वंदे यहाँ से चले जाओ, अदरवाइज हम अपना पावर दिखाएगा। यहाँ से चले जाओ।
कहता हूँ मेरे ऊपर किया गया एक वार अंग्रेजी हुकूमत के लिए बहुत महंगा साबित होगा। मेरे ऊपर बरसाई गई एक लाठी अंग्रेजी राज के ताबूत में आखिरी चीज साबित होगी। अब सुराज आके रहेगा, मैं कहता हूँ सुराज आके रहेगा। आई डिक्लेयर द वॉर। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। राग भारत मुझ पे छेड़ो झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आंखों से छलकना चाहिए। न रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देख सकता है तो तू भी देख ले आसमां। हौसला ये देख के कातिल बड़ी मुश्किल में है। हमारा मकसद किसी को मारना नहीं था योर ऑनर। हमारा मकसद सिर्फ अपनी बात सुनाना था और बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, इसलिए यह बॉम्ब फोड़ा गया। यह बॉम्ब एक चेतावनी थी अंग्रेजी हुकूमत के लिए कि यहां उनका वक्त खत्म होने को आया है। यह बॉम्ब एक चेतावनी है असेंबली में बैठे उन लोगों के लिए जो आवाम के साथ गद्दारी करते चले आ रहे हैं। उसे रोक दें, इसलिए यह बॉम्ब फोड़ा गया। हमारे देश का असली आधार है हमारे किसान, हमारे मजदूर, लेकिन ना सिर्फ उनकी मेहनत को बेदर्दी से लूटा जा रहा है बल्कि ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के जरिए उनसे विरोध करने का बुनियादी हक भी छीना जा रहा है। उनकी पीड़ा और उनके संघर्ष को दुनिया के सामने लाना हमने अपना फर्ज समझा, इसीलिए यह बॉम्ब फोड़ा गया। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे नौजवान, हमारी नई पीढ़ी खुद सोचे कि उसे किस तरह का भविष्य चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन, डाउन विद इंपीरियलिज्म। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। अगर आप लोग यहाँ से बेकारी हटाना चाहते हो तो वो कपड़े हो मैनचेस्टर लीड के हैं, उन्हें उतार फेंकें। 1 लाख अंग्रेज किसी भी तरह 35 करोड़ हिंदुस्तानियों पर हुक्म नहीं चला सकते। वंदे मातरम। वंदे मातरम। बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
दुश्मनों का सर चुने वतन बढ़ाए जब तू शेर हिंद आगे बढ़ मरने से फिर भी तू न डर उड़ा के दुश्मनों का सर चुने वतन बढ़ाए जब कदम कदम बढ़ाए जब खुशी के गीत गाए जब ये जिंदगी है कौम की तू काम पे लुटाए मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे बसंती चोला माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे बसंती चोला माए रंग दे मेरा रंग दे मेरा रंग दे कोई आखिरी ख्वाहिश? एक बार हम गले मिलना चाहते हैं। हाँ हाँ जरूर जरूर। भगत, सुखदेव, राजगुरु, राज, भगत सिंह, राज, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। दिन आज का बड़ा सुहाना, मौसम भी बड़ा सुनहरा, हम सर पे बांध के आए बलिदानों का ये सहरा। बेताब हमारे दिल में एक मस्ती सी छाई है देश अलविदा तुझको कहने की घड़ी आई है। महकेंगे तेरी फिजा में हम बन के हवा का झोंका, किस्मत वालों को मिलता ऐसे मरने का मौका। निकली है बारात, सजा है इंकलाब का डोला, मेरा रंग दे मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे बसंती चोला माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। सुनीति और शांति सुनो, तुम्हें मजिस्ट्रेट स्टीवन को मारना है। ठीक है कल्याणी जी। क्यों यहाँ आए हो? हमारी स्कूल की तरफ से 3 मील की तैराकी प्रतियोगिता हो रही है, उसके लिए जिलाधीश महोदय का सहयोग चाहिए। ये प्रार्थना पत्र है। ठीक है, आप यहीं रुको, मैं पूछ कर आता हूँ। सर, 2 लड़कियां ये पत्र लेकर आई हैं, आपसे मिलना चाहती है। भेजो उन्हें। ओके सर। तुम दोनों अंदर जा सकती हो। सर प्लीज, आप हमारी मदद कीजिए। ओके ओके, पर इस लेटर पर आपके प्रिंसिपल का सिग्नेचर नहीं है,
इसलिए आप सिग्नेचर लेकर आइए। आप इस बात को इस प्रार्थना पत्र पर लिख दीजिए। आज भगत सिंह की फांसी का बदला पूरा हुआ। वंदे मातरम, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वंदे मातरम। शास्त्री जी महाराज, गांधी जी इसी नवा गांव में दांडी कूच लेकर पहुंचे हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा डॉक्टर नाथा भाई, हम स्वयं उनसे मिलना चाहते हैं। जय स्वामी नारायण। नमस्ते स्वामी जी। जय स्वामी नारायण। आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारा आजादी का कार्य सफल हो, जल्द से जल्द आजादी मिले और इस देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति मिले। आपके प्रयास से देश को स्वतंत्रता मिले, इसके लिए ये जोगी रोज 11 माला करेंगे। कुछ ही सालों में आपको आजादी जरूर मिल जाएगी। जय स्वामी नारायण स्वामी जी। हमें जल्द से जल्द दांडी पहुंचना है। जय स्वामी नारायण। थोड़ा तो जगाए अपने दिलों में हम। क्या नाम है अपना जहां में, खड़े हैं कहां पे हम। है हमें जाना कहां, चले हैं कहां पे हम। हमसे पूछे है ये मादरे वतन। जातिगत ऊंच नीच में विश्वास करना छोड़िए। हम सब हिंदू हैं, एक हैं। आपने क्यों अपने धर्म को कपड़ों, जनेऊ और चोटी तक सीमित कर रखा है? हिंदू महान जाति का दर्शन है। अपनी एकता की शक्ति को पहचानिए, अंग्रेजों को बाहर का रास्ता दिखाइए। भारत माता की भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। अंग्रेजों तुम भारत छोड़ो, तुम भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मातरम, वंदे मातरम। हमें तुम्हारा नहीं भरोसा, यद्यपि हमने पाला पोसा। अपने उत्तर हम खोजेंगे, पिंड हमारा छोड़ो। भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत
अपने दिलों में हम। क्या नाम है अपना जहां में खड़े हैं कहाँ पे हम। है हमें जाना कहाँ, चले हैं कहाँ पे हम। हमसे पूछे है ये मादरे वतन। आदमी को नमक चाहिए, वैसे ही जैसे हवा और पानी को। ये नमक हमारे अपने समुद्र का है, हर हिंदुस्तानी का इस पर अधिकार है। आज से हम नमक पर कर वसूली का कानून तोड़ते हैं। वंदे मातरम। जाना है तारों से आगे, अपना रुकेंगे हम। ओ एक नई सुबह जगाए सारे जहां पे हम। हिम्मत करे आगे बढ़े अब नए रास्तों पे हम। सारी दुनिया अपनी मादरे वतन। तुझे सलाम, ओ तुझे सलाम, ओ तुझे सलाम, तुझे एहसास थोड़ा तो जगाए। क्या नाम है अपना जहां में, एक नई सुबह जगाए। हर इंतजार है जहां को। माता की जय, जय माता की जय। 15 अगस्त 1947 को मैं अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ, परंतु अंग्रेजों के शोषण के कारण मेरी स्थिति दयनीय थी। आंतरिक सुरक्षा, अशांति, इन सब समस्याओं का सामना करते हुए मैंने अपने कदम आगे बढ़ाए। आजादी के 2.5 साल बाद ही 26 जनवरी 1950 को मैंने दुनिया में लंबे संविधान को लागू किया और एक गणराज्य के रूप में दुनिया के सामने आया। मेरी उड़ने की चाहत थी, बस पंखों की कमी थी। काफी इंतजार के बाद जब पंख मिले तो मैंने उड़ने की कोशिश करते हुए 5 वर्षीय योजनाओं की स्थापना की। 21 नवंबर 1963 को पहला रॉकेट लॉन्च किया। इसकी सफलता के बाद सन 1969 में मैंने इसरो की स्थापना की। 13 जनवरी 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत की। 18 मई 1974 को मैं परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना। मैंने नीति आयोग का गठन भी किया, परंतु असली उड़ान तो अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है, जिसके लिए मुझे गरीबी से मुक्त, समृद्धि से युक्त, भेदभाव से मुक्त, समानता से युक्त,
अन्याय से मुक्त, न्याय से युक्त, गंदगी से मुक्त, स्वच्छता से युक्त, भ्रष्टाचार से मुक्त, पारदर्शिता से युक्त, बेरोजगारी से मुक्त, रोजगारी से युक्त, महिला उत्पीड़न से मुक्त, स्त्री सम्मान से युक्त, निराशा से मुक्त, आशा से युक्त बनना होगा। सबका साथ, सबका विकास जन जन में जगाना होगा। मेरी असली उड़ान तो अब आपके हाथों में है, क्योंकि ये चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगाजल है। हम जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे तो इसके लिए। मैं जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष हूं। हिमालय मस्तक है मेरा, कश्मीर किरीट है मेरी, पंजाब और बंगाल विशाल कंधे हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट दो विशाल बंधाएं हैं, कन्याकुमारी मेरे चरण हैं, सागर मेरे पग पखारता है। ये चंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगाजल है। तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा, लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए विजयी भव, विजयी भव, गगन गए विजयी भव। भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी, गगन गए विजयी भव। भोली सी तेरी बांसुरी खो गई सावरे, घायल है तेरा जल, तू नदी है राह बदल, पानी बुलबुला रहा है कल कल कल, तू निकल, तू निकल। माटी ने तेरी आज पुकारा, धरती ये पूछे बारंबार, लुट रहा ये चमन
तेरा वतन आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन, तेरा वतन आंखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजय भव। તું દબાઈ રાખ, સ્વિચ ચાલુ. જોરદાર તાળીઓ આ સૌ બાળ કલાકારો માટે કે જેમણે સખત પરિશ્રમના અંતે આપણી સમક્ષ અદ્ભુત કલા પ્રસ્તુતિ રજૂ કરી. આપણે સૌ ફરી એકવાર જોરદાર તાળીઓથી વધાવી લઈએ આ કલાકારો તથા તેમના કસબીઓને. સ્વજનો, આ હતી શારદા મંદિરના 56મા વાર્ષિકોત્સવની અંતિમ કૃતિ. ફરી મળીશું શારદા મંદિરના 57મા વાર્ષિકોત્સવમાં 16 ફેબ્રુઆરી 2024 ને શુક્રવારે સાંજે 6 કલાકે આ જ સ્થળે નવી રજૂઆત જીન અંકલ સાથે. ત્યાં સુધી અમોને રજા આપશો. આવજો. શુભ રાત્રિ. સૌને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. ધન્યવાદ. જય હિન્દ. ભારત માતા કી. ભારત માતા કી. ધન્યવાદ. હેલો, આ બાળક કોઈનું રહી ગયું છે